الہ آباد کے نواحی علاقے میں افسوسناک واقعہ، بجلی کے پول میں کرنٹ آنے سے 6 سالہ بچہ جاں بحق۔ 6 سالہ عدنان گھر سے دکان پر چیز لینے گیا تھا کہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ بچے کے اہل خانہ غم سے نڈھال، ورثاء کا کہنا ہے کہ وابڈہ اہلکاروں کی نااہلی کے باعث ان کا بچہ جاں بحق ہوا۔ اوکاڑا میں بچوں کے جھگڑے پر عظیم مرزا نامی شخص کا ظالمانہ اقدام، اسد نامی بچے کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے باعث بچے کی حالت غیر ہو گئی۔ متاثرہ بچے کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بچے کے والدین نے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی کارروائی، آرمی کی وردی میں ملبوس 9 سربازوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ ایس ایچ او خانزادہ خان نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ ملزم کی شناخت امیر معاویہ کے نام سے کر لی گئی۔ پنڈی گھیب میں بجلی بلز میں اضافی ٹیکسز کے خلاف شہری سراپا احتجاج، رہن گروپ جان محمد کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ شہریوں کی جانب سے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ روڈ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹنڈو والا یار میں بارشوں کے باعث نصیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ نکاسی آب نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں نے متعلقہ اعلیٰ افسران سے نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات یقینی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور دریائے راوی کے مقام جسر کے پر پانی کی مسلسل سطح بلند، گجرانوالہ، نارووال اور سیالکوٹ کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ سیلاب کے خطرے کے پیش نظر تمام تر انتظامات مکمل ہیں۔ السلام علیکم، کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن میں خوش آمدید۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ راجن پور کوہ سلمان میں ہونے والی بارشوں کے باعث سیلابی ریلا وسطی میں پہنچ گیا۔ قطب ڈرین کی پشتیں کمزور ہونے کی وجہ سے فتح پور روڈ کے مقام پر شگاف پڑنے کا خطرہ منڈلانے لگا۔ شگاف پڑنے سے ضلعی ہیڈ کوارٹر میں سیلابی پانی آنے کا خدشہ ہے۔ نالا ڈیک میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، صرف 20,000 کیوسک سیلابی پانی کا ریلا گزرنے کی گنجائش۔ اس وقت 48,000 کیوسک ریلا گزر رہا ہے۔ متعدد دیہات زیر آب آنے کا خدشہ۔ لاڑکانہ اور گردنواہ میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش نے تباہی مچا دی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں ہر طرف بارش کا پانی جمع، شہر کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ انتظامیہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش۔ محکمہ موسمیات نے 16 اگست سے 18 اگست تک وقفے سے بارش ہونے کا عندیہ دے دیا۔ ٹنڈو جام میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ صدر انجمن تاجران عبدالمنان راجپوت کا کہنا ہے کہ متعدد علاقوں میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث بارش کا پانی تالاب کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کے باعث شہریوں کو وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ٹنڈو جام میں بارش نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ صدر انجمن تاجران عبدالمنان چودھری کا کہنا ہے کہ متعدد علاقوں میں سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث بارش کا پانی تالاب کا منظر اختیار کر چکا ہے، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات بھی نہیں کیے جا رہے۔
डेरा मुराद जमाली के इलाके रबी के मकाम पर लहर घिगड़ी डैम से आने वाला सैलाबी रेला रबी कैनाल में दाखिल, सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ गए, मुतादिद लोग फंस गए। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असलम बलोच से। जी असलम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा मुराद जमाली के इलाके रबी पुल के मकाम पर, जहाँ पर लहड़ी डैम से आने वाले सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी है। ये लहड़ी से जो सैलाबी रेला आया है वो जो है रबी कैनाल में दाखिल हो चुका है और रबी कैनाल पर पानी का शदीद दबाव है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जो जगह है गोट अब्दुल खालिक जमाली का है। यहाँ पे बिल्कुल 3 से 4 फुट जो है पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है रेस्क्यू लेके कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं कि इन जो फंसे हुए लोगों को जो है वो बाहर निकाला जाए। हुकूमत को चाहिए कि फिलफौर जो है ज़िला इंतज़ामिया को अहकाम दे कि जो भी फंसे हुए लोग हैं इनको बाहर निकाले और इनके लिए जो है राशन और टेंट का जो है बंदोबस्त भी किया जाए। इस वक्त इस इलाके में जो है सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, हज़ारों अफराद जो हैं वो बिल्कुल फंसे हुए हैं। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल जल्दी। असलम बलोच, अपडेट करने का आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि चिश्तिया में गंदगी के ढेर, बल्दिया समेत तमाम तर इंतजामिया खामोश, शहरियों का गुजरना भी महाल हो गया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन। जी ताहिरुल हसन, अपडेट कीजिएगा। चिश्तिया शहर भर में और दीगर मज़ाफ़ाती इलाकों में अगर बात करें तो बल्दिया की गफलत और लापरवाही की वजह से जगह जगह गंदगी के बड़े बड़े अंबार लग चुके हैं। मेन शराहों पर गंदगी की वजह से लोगों का गुजरना जो है बिल्कुल मुहाल हो चुका है। ये मेरे अकम में, मेरा कैमरा मैन थोड़ा सा आपको दिखा सके तो ये आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह चिश्तिया शहर भर के मेन बाज़ारों में बड़े बड़े गंदगी के अंबार लगे, लेकिन बल्दिया के जो मुलाजमीन अपने दफातरों तक महदूद होकर रह चुके हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बताइएगा, बल्दिया के मुलाजमीन लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं और यहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े अंबार लगे तो हुए, तो आप इस वाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहना ये चाहूँगा कि आज 2-3 दिन से ये ढेर लगा हुआ है। बल्दिया के किसी मुलाजम को भी ये ज़रा शर्म हया नहीं आई कि वो तनख्वाहें ले रहा है, लेकिन ये ढेर उठाने के लिए कोई भी हाजिर नहीं हुआ। इधर 3 दिन से इस बाज़ार में सफाई नहीं हुई है। सब्ज़ी बाज़ार है चिश्तिया शहर का, जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन किसी बल्दिया मुलाजिम को ज़रा शर्म हया नहीं आ रही कि इधर खाने पीने की चीज़ों में गंदगी और मक्खियों के ढेर इधर आए हुए हैं, लेकिन वो कूड़ा उठाने के लिए इस बाज़ार में नहीं है और ना ही सफाई के लिए आए। तो हमारी एसी साहब से अपील है और ये जो बाजवा साहब और मलक मुजफ्फर साहब हैं, जो आजकल वोटों की खातर तो पूरे पाकिस्तान में भाग रहे हैं, पूरे ज़िले में भाग रहे हैं, लेकिन इन गंदगियों के ढेर को उठाने के लिए और इसमें जो बाज़ार में पानी खड़ा हो जाता है उसको ख़त्म करने के लिए कोई भी आवाज़ बुलंद नहीं करता। तो मेरी ये अपील है उनसे कि खुदारा ये हम पे रहम किया जाए और ये बाज़ारों की सफाई की जाए। जी बिल्कुल, ये थे यहाँ के शहरी। इनका कहना है एक तरफ तो यहाँ पर खाने पीने की अशियाँ पड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर गंदगी के बड़े बड़े अंबार लगे हुए। मुतअद्दिद बार इंतजामिया को 12 दफ़े इसके हवाले से हमने बताया, लेकिन ताहिरुल हसन, अपडेट करने का बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि टंडोवाला यार में बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निकासी आब न होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतलका आला अफसरान से नोटिस लेते हुए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आपको अपडेट करें कि टंडोवाला यार में बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। निकासी आब न होने के बाद शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने मुतलका आला अफसरान से नोटिस लेते हुए फौरी इक़दामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। दरियाए रावी में जसर के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तर्जमान PDMA का कहना है कि शाहदरा के मकाम पर 40,000 क्यूसिक से जायद पानी आने से निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। पानी की सतह बुलंद होने से गुजरवाला, नारोवाल और सियालकोट के नदी नालों में तगयानी का खदशा है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। मोटरवे M5 हादसा, मोटरवे पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल। मलबा हटाकर मोटरवे को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज खान चौहत्ता से। जी एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी
बिल्कुल मैं मौजूद हूँ इस टाइम जलालपुर इंटरचेंज के साथ जहाँ पर हादसा हुआ है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो लाहौर से कराची जाने वाली गाड़ी थी उसमें 26 अफराद जो है सवार थे और 26 अफराद में से 20 अफराद जो है मौके पर जाँ बहक हो गए और 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। उनको मुल्तान निश्तर हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मेरे साथ जो सेक्टर कमांडर हैं राना इस्माइल साहब, इनसे बात करेंगे कि इस हादसे के मुतालिक जो मालूमात हैं वो क्या हैं। जी सर। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि सारी रात मेरी फोर्स यहाँ पे मौजूद रही है, यहाँ तक कि एडिशनल आईजी साहब भी लाहौर से तशरीफ़ लाए, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब। इसके अलावा शाहिद जावेद हमारे जो डीआईजी साहब हैं, जो जोनल कमांडर हैं मुल्तान से, वो भी रात को ही तशरीफ़ ला के आके यहाँ पहुँच चुके थे और उन्होंने सारे ऑपरेशन को उन्होंने ख़ुद निगरानी की और हमें हिदायत देते रहे। मेरे तमाम टीम ने, रेस्क्यू 1122 ने, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने और दीगर तमाम अलाइड एजेंसीज़ जो हैं उन्होंने मिल के एफर्ट्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब रोड क्लियर हो गया है, रोड खुलवा रहे हैं हम, 1 से 2 मिनट में रोड क्लियर हो जाएगा, ट्रैफिक रवां दवा हो जाएगी। अच्छा सर, इसमें जो जहाँ बहक हुए हैं 20 अफराद, उसकी शनाख्त के हवाले से आप कहते हैं? जी, उनके इसके हवाले से वो डेड बॉडी सारी जो शिफ्ट हो गई है निश्तर बर्न यूनिट में, वहाँ जब उनके वो DNA होगा उसके प्रॉपर होगा। अच्छा सर, अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो क्या है? ताज़ा तरीन अब यही है कि 6 बंदे ज़ख्मी हैं, तो 20 की डेथ हो गई है। अब वहाँ पे डेथ वो इंफॉर्मेशन सेंटर मोटर पुलिस की तरफ से कैंप कर दिया गया है। लवाहिकीन जो है उनको इन्फॉर्मेशन फराहम की जा रही है और उनको गाइड भी किया जा रहा है। जी, इनका यही कहना है कि जो है जो इसमें जहाँ बहक हुए हैं उनकी DNA से उनकी शनाख्त की जाएगी और अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इनका यही कहना है कि जो ट्रैफिक है उसको बहाल कर दिया गया है और मलबे को यहाँ से हटाया। जी एजाज, आपका बेहद शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अलाहाबाद के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाकया, बिजली के पोल में करंट आने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। 6 साला अदनान घर से दुकान पर चीज़ लेने के लिए गया था कि हादसे का शिकार हो गया। बच्चे के अहल खाना गम से निढाल। वरसा का कहना है कि वापटा एहलकारों की नाअहली के बायस उनका बच्चा जाँ बहक हुआ है। आपको अफसोसनाक खबर से अपडेट करें कि इलाहाबाद के नवाही इलाके में अफसोसनाक वाकया, बिजली के पोल में करंट आने से 6 साला बच्चा जाँ बहक हो गया। 6 साला अदनान घर से दुकान पर चीज लेने के लिए गया था कि हादसे का शिकार हो गया। बच्चे के अहल खाना गम से निढाल। वरसा का कहना है कि वापडा एहलकारों की नाअहली के बायस उनका बच्चा जाँ बहक हुआ। ओकाड़ा में बच्चों के झगड़े पर अजीम मिर्जा नामी शख्स का जालमाना इकदाम। असद नामी बच्चे को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बायस बच्चे की हालत गैर हो गई। मुतासरा बच्चे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चे के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही और IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी के नाम पर जालसाजी करने वाला 9 सरबाज सरगोदा से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से सर्विस कार्ड, चालान बुक, सर्विस कोड और जाली बैंक कार्ड और नोटबुक बरामद कर ली गई है। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक शाहजेब अकरम जाली फूड सेफ्टी ऑफिसर बनकर लोगों से पैसे वसूल करता था। मुलजिम छोटे होटलों और दीगर दुकान मालिकान को धमकियां देकर मतलूबा रकम वसूल करता था। मुलजिम ने जालसाजी को हकीकत का रंग देने के लिए चालान के मुकम्मल कवायद तैयार कर रखे थे। मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पिंडी घेब में जारी बिजली बिल्स में इजाफी टैक्सेस के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। रहन ग्रुप हाजी जान मोहम्मद की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। रोड ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
بہاول نگر میں NCH سے منسلک ٹیچرز 14 ماہ کی تنخواہ سے محروم ہو گئے، پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شہباز پرنس سے۔ جی شہباز، بتائیے گا کہ اساتذہ کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پریس کلب بہاول نگر میں۔ یہاں پر جو ٹیچر حضرات جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری 14 منتھ سے جو ہے تنخواہیں روکی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، تو ہمیں ہماری تنخواہیں بحال کی جائے اور ہمیں ریگولر بھی کی جائے۔ ان سے ہم مزید بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ 14 ماہ سے تنخواہ نہیں دے رہی، ہمیں تنخواہ دے، اور ہمیں ریگولر نہیں کر رہی۔ 2002 سے ہمارے اسکول جو ہیں، یہ نیشنل کمیشن فار وومن ڈیولپمنٹ، پورے پاکستان میں یہ ادارہ اوپن ہوا تھا، تو پورے پاکستان کے باقی دیگر جتنے بھی صوبے ہیں سب کو ریگولر کیا گیا، ان کی اچھی پالیسی بنائی گئی ہے، ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ کم از کم جو ہے 30,000 تک کر دی گئی ہیں، اور ان کو اسکولوں میں جو بجٹ ہے، وہ جو فنڈ ہے وہ بھی دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکولوں میں نہ ہمیں فنڈ دیا جاتا ہے، نہ ہماری تنخواہیں دی جا رہی ہیں، نہ ہمیں ریگولر کیا جا رہا ہے، نہ ہمیں کوئی اچھی پالیسی دی جا رہی ہے۔ ہم گورنمنٹ اسکولوں کے ساتھ پہلے دن سے کام کر رہے ہیں، گورنمنٹ پرائمری اسکولوں کے ساتھ، لیکن پنجاب والوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہے کہ 2,000 ہم اساتذہ ہیں، 2,000 کی 14 ماہ سے سیلری بھی نہیں دے رہے ہیں، اور کام وہی ہم کر رہے ہیں جو گورنمنٹ پرائمری اسکولوں میں ہو رہا ہے۔ جو بھی بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں ان سے زیادہ تعداد ہمارے پاس، اور یہ اسکول ایسی جگہ پر بنائے گئے ہیں جہاں پہ دوسرے اسکول جو گورنمنٹ پرائمری اسکول ہیں ان کا نام و نشان بھی نزدیک تک نہیں ہے۔ 1.5 3 کلومیٹر دور ہمیں چل کر جانا پڑتا ہے، ہمیں بائکس پہ جانا پڑتا ہے، رکشوں پہ جانا پڑتا ہے، جیسے بھی جانا پڑتا ہے، لیکن ہم پھر بھی پڑھا رہے ہیں۔ لیکن قوم کے معمار ہونے کے ناطے ہم پر اتنی زیادتی ہے کہ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ ریگولر نہیں کر رہے ہیں، اور نہ ہی ہمیں ہماری سیلری دے رہے ہیں۔ ہماری جو ہے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر تعلیم پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ہم پر ترس کھائیں، ہماری پالیسی بھی بنائیں، ہمیں گورنمنٹ پرائمری اسکولوں میں ضم کریں، ہماری ریگولر جو ہے ہمیں ریگولر کرنے کے ساتھ ہی ہماری جو 14 ماہ کی سیلری وہ بھی ہمیں دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری جو تنخواہیں جو ہیں وہ 14 منتھ سے ہماری بند کی گئی ہیں، اور جو دوسرے متعلقہ جو ادارے ہیں ان کی یعنی کہ ریگولر بھی کی گئی ہے، پر ہمیں ریگولر بھی نہیں کیا گیا، اور ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ بھی روک رکھی ہے۔ ہمارا جو استادوں کا جو یہ حق ہے یہ ہمیں دیا جائے، اور تاکہ ہم اپنے بچوں کی جو گزر بسر جو ہے بآسانی سے کر سکیں۔ جی شہباز پرنس، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں کہ گجرانوالہ میں بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بھرمار کے خلاف حافظ آباد اور علی پور چٹھا کے فش فارمرز اور کسانوں کا گیپکو آفس کے باہر احتجاج۔ مظاہرین نے گیپکو آفس کا گھیراؤ کیا اور نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے بجلی کے بل نظر آتش کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں میں ہزاروں روپے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس عوام پر ظلم ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس کی کارروائی، آرمی کی وردی میں ملبوس 9 سرباز کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ SHO خانزادہ خان نے پولیس ٹیم کی ہمراہ کارروائی کی۔ ملزم کی شناخت امیر معاویہ کے نام سے کر لی گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سابق صوبائی وزیر سمیع اللہ کی پریس کانفرنس۔ سمیع اللہ نے جمعیت علماء اسلام فے میں شمولیت کا اعلان کر دیا۔ مزید جانتے ہیں سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سابق صوبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سمیع اللہ العزئی نے جمعیت علماء اسلام صدرمان گروپ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 3.5 سالوں میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، اور اس کو سب سے پہلے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان نے پہچانا اور اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ شہر کے ایک مقامی ہوٹل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا، میں جی یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جو ڈی اے خان کے دوست ہیں، لوگ ہیں، ہمیں قدر کرنی چاہیے، ہمیں قدر کرنی چاہیے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، کہ جن کا وزڈم ابھی جو موجودہ جتنی بھی پارٹیز کی لیڈرشپ ہے اس سے 20 سال آگے ہے، اور ڈی اے خان کی ترقی میں جو ان کی خدمات ہے وہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پکا ارادہ ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ مولانا صاحب عنقریب تشریف لائیں گے اور ان کے ساتھ باضابطہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم اعلان کر دیں گے۔ سابق صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ علی امین خان گنڈاپور اپنا استعفیٰ منظور کرائیں اور میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ واضح رہے کہ سمیع اللہ العزئی ایک طویل عرصے سے سیاست سے دور رہنے اور پارٹیاں بدلنے کے باعث اپنا سیاسی مورال کھو بیٹھے ہیں، جسے وہ دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
कैमरा टीम के साथ सैयद रसूल मदनी, कोहिनूर न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। सैयद रसूल मदनी की रिपोर्ट आपने देखी। अब आपको बताएं कि चिश्तियाँ ज़िमनी इंतखाबात हल्का PP 241 में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब। अंजुमन ताजरान ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। नायब सदर अंजुमन ताजरान राना अली रजा आबिद के डेरे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। MNA एहसानुल हक बाजवा और अमानुल्लाह बाजवा ने तकरीब से खिताब किया। कराची में एंटी वेन और एंटी रेप्स वैक्सीनेशन के हवाले से इजलास हुआ। इजलास की सदारत वज़ीर सेहत उज़रा पचीहो ने की। अब्दुल बारी पेताफी और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सोमरो ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अनवर मगसी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचू की सरबराही में सिंध में एंटी वेनियम और एंटी रेबीज़ वैक्सीन के सिलसिले में सिंध को खुद केफिल बनाने के हवाले से अहम इजलास उनके ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इस मौके पर वज़ीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरी सिंध अब्दुल बारी पेतावी, पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए सेहत कासिम सोमरो, सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़कार शाह, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक सिंध डॉक्टर नज़ीर कलोड़ो और दीगर ने शिरकत की। इजलास में आगाही दी गई कि सिंध में एंटी वेनियम यानी सांप के काटने और एंटी रेबीज़ यानी कुत्ते के काटने की वैक्सीन बनाने के लिए वसाइल मौजूद है। इजलास में इस बात का भी फैसला किया गया कि सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन की तैयारी के सिलसिले में सकरंड में कायम वेटरनरी इंस्टीट्यूट, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची और डॉ यूनिवर्सिटी लैब मिलकर इस ज़मीन में दस्तयाब व दरकार वसाइल के हवाले से मनसूबाबंदी की जाएगी। दौरान इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि वैक्सीन की तैयारी के लिए गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस मौके पर वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचू ने कहा कि सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन की तैयारी के बाद वैक्सीन के सिलसिले में दीगर मामलों पर हमारा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। ज़रूरत के वक्त वैक्सीन की मौजूदगी को ख्याल रखने में मदद मिल सकेगी। वज़ीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज सिंध अब्दुल बारी पेतावी ने कहा कि वैक्सीन की तैयारी से न सिर्फ सिंध बल्कि मरहलावार पूरे मुल्क को भी वैक्सीन मुहैया की जा सकेगी। कराची के इलाके सरजानी टाउन में ज़ेर तामीर इमारत मुनहदिम हो गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 ज़ख्मी। मज़ीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। शहर काइद में एक और बिल्डिंग जमीन बोस हो गई। नाकिस मटीरियल से तामीर होने वाली एक और 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। सरजानी टाउन सेक्टर 4D में जेर तामीर 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। हादसे की जगह पर सबसे पहले मौजूद कोहिनूर न्यूज़ की टीम एंकर अनवार अहमद शेख की जेर निगरानी पहुँच गई। जाए वक़ुआ पर इलाकाई लोगों का हजूम, लोग अपनी मदद आप के तहत मलबे दले दबे अफराद को निकाल रहे हैं। कुछ देर बाद रेंजर्स भी पहुँच गई और इमदादी कामों में हिस्सा लिया और KN की टीम भी इलाका मकीनों के साथ मिलकर मलबे तले दबे लोगों को निकाल में मसरूफ। रेस्क्यू के अमल जारी है। रेंजर्स और पुलिस एहलकार लोगों को रेस्क्यू करने में मसरूफ। बड़ी भी शुक्रिया अदा करूंगा कोहिनूर चैनल की तरफ से कि सबसे पहले ये यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम आवाम से इन्होंने बात करी है और मसले सुने और ये बिल्डिंग के ऊपर कवरेज के लिए पहुंचे हैं और कोई चैनल यहाँ पर मौजूद नहीं है, सिर्फ कोहिनूर मौजूद है। अभी 5 बंदे अंदर भी हैं, अभी 30-35 लोग अंदर मौजूद हैं। बिल्डर का नाम नहीं पता, हम नहीं जानते ना। ये तो बताया सर हमें 1 मंजिल का फिर इजाफा किया इन्होंने। उसके बाद पहले 3 मंजिल बनी थी फिर उसके बाद 1 मंजिल का और इजाफा कर दिया। बस पैसे खिलाए जाओ, बिल्डिंग बनाए जाओ। और फिर उसके बाद ये इतनी तेजी से देखते देखते बिल्डिंग पहले इन्होंने 3 माला बनाई थी, फिर उसके बाद इन्होंने 1 कैमरामैन नईम के साथ फौजिया बेग। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि हाफिजाबाद में राना मकसूद अहमद की जानिब से रिटायर्ड असातिज़ा के एहसास में इशाइया दिया गया। इशाइये में 150 से ज़्यादा रिटायर्ड असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौका पर राना मकसूद और शरका का क्या कहना था, आइए जानते हैं। साहिब हाफिजाबाद की एक इल्मी अदबी तालीमी शख्सियत हैं। उन्होंने आज एक इंतहाई शानदार प्रोग्राम मुरतब किया है। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी में था, वहाँ मुझे फ़ोन किया कि आप अगर हाफिजाबाद आएँ तो ये हमारा प्रोग्राम। ये अक़दाम जो है मैं कहता हूँ कि हमारे ज़िलों की आवाज़ है।
बल्कि जो भी तालीमी हल्के हैं उन साहब ने अपनी ज़ाती काविश के ज़रिए आज जो हमारे रिटायर्ड टीचर्स हमारे मोहतरम असातिज़ा कराम जो आज मौका फराहम किया है इकट्ठे बैठने का, उनके ऑनर में डिनर देने का, ये ज़िंदगी का मैं समझा मेरी ज़िंदगी का बहुत एक फ़कीर मिसाल में कहूँ तो वो भी तकरीब जी जाना मकसूद साहब ने लाई है ये इन्हों के एजाज यही दस कि बड़ा खूबसूरत उन्होंने कट किया है सारे असातिज़ा का इतराफ़ खिदमत लाए रहे हो। मैं उन्होंने बड़ा मशहूर हाँ, उन्होंने मैनू भी याद रखे अपने असातिज़ा। मैं लाहौर से स्पेशल जो है वो इस इवेंट के लिए जो है वो आज आया हूँ। मेरे आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि एक ही कंपाउंड के अंदर जो है यक वक्त इतने रिटायर्ड दोस्तों से मुलाकात मुमकिन नहीं थी। राना मकसूद साहब जो है वो स्कूल के ओनर जो हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। मैं उन्हें दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उनकी इस एफर्ट को दिल से कदर करता हूँ। हाफिज़ाबाद के अहलियान हाफिज़ाबाद तो वैसे भी जो है वो नई नई एग्जाम्पल सेट करने में बड़े मशहूर हैं, लेकिन ये उन्होंने अपनी नौइयत का एक मुनफरिद काम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और यहाँ राना मकसूद साहब ने ज़्यादातर उन हजरात को मदऊ किया है जो कि मुलाजमत की पाबंदियों से आज़ाद हो चुके हैं। तो इस मौके पे मुझे एक रुबाई याद आ रही है कि इश्क व आज़ादी बहारे ज़ीस्त का सामान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क। कराची में मोहम्मद यूसुफ नामी शख्स का एहसन इक़दाम कौम को मुश्किलात से बचाने के लिए 21 बकरों और 2 बछड़ों का सदका दे दिया। मज़ीद जानते हैं अरशद महमूद मुग़ल की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तानी की जानिब से पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को मुश्किलात से निजात के लिए 21 बकरों 2 बछड़ों का सदका दिया गया। 300 फीट का परचम लहराया गया, 100 पाउंड का केक भी काटा गया। तकरीब में शेख हबीब, शाहिद महमूद, अतीक मीर समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। यूसुफ पाकिस्तानी का कहना था कि मेरा घर मेरी जन्नत, मेरा घर पाकिस्तान की सोच हम सबको रखनी होगी। पाकिस्तानी परचम पर 28 मन फूल भी निछावर किए गए। हमें सबको मिलके एक दफ़ा खैर का काम अल्लाह ताला में तौफीक दे और अल्लाह ताला आप लोगों को सबको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला ने आप लोगों के हाथ में हुक्मरानियाँ दी हैं और अल्लाह ताला ने आपके हाथ में बहुत कुछ दिया है और मेरी दुआ है कि आप भी अपने मुल्क और कौम के लिए ऐसा इसको रोशन बनाएं कि बजाय हम सिर्फ बातें करने की, बातें तो मैंने बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, कभी कोई दावे करता है कभी कोई दावे करता है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन सब के जो खैर वाले दावे जो मुल्क और कौम को ऊपर ले जाने वाले हैं, जिसमें मेरे मुल्क और कौम की बेहतरी के मामलात हों, वो अल्लाह ताला इनको करने की तौफीक दे। रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, मेरा घर मेरी जन्नत, मेरा घर पाकिस्तान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। यूसुफ पाकिस्तानी मेरा नाम। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। बात तो ये है कि हमने कराची में कुरंगी इरफान भट्ट साहब किधर है सरकार? आप तमाम किया है इरफान भट्ट साहब 21 बकरों का सदका पूरे पाकिस्तान का और अल्लाह पाक इरफान भट्ट साहब रखे पूरे पाकिस्तान को, हमारी आवाम को, खसूसन हमारे भाई यूसुफ पाकिस्तानी को, और हमारे जिसने ये सारी जदोजहद करके ये सारा जो सिस्टम है इसको हर साल अरेंज करते हैं। तो अल्लाह पाक सबके लिए सानियाँ पैदा करे और पाकिस्तान कायम दाम रहे। सबका नौशहरा के इलाके निज़ामपुर से ताल्लुक़ रखने वाली तलबा का एहसास, होनहार तालबा ने मर्दान बोर्ड में टॉप कर लिया। मज़ीद जानते हैं माजिद खटक की इस रिपोर्ट में। हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत और लगन हो तो कामयाबी हासिल करना नामुमकिन नहीं। ऐसा कुछ कर दिखाया सफ़ा चिल्ड्रन एकेडमी काही के होनहार तलबा हुस्ना बीबी ने। इसने ग्रुप ऑफ आर्ट्स में मैट्रिक के इम्तिहान में 1100 में से 1019 नंबर हासिल करके मर्दान बोर्ड में अव्वल पोजीशन हासिल करके मैदान मार लिया। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। वसाइल कम होने के बावजूद मुझे पढ़ने लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद बाकायदगी से अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देती हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ जिसकी वजह से आज मैंने टॉप किया है। अल्लाह ताला के फजल से, असातिज़े कराम की मेहनत से और मेरे वालिदैन की दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। वालिदैन कहते हैं इंतहाई मुश्किल माली मुश्किलात के बावजूद अपने बच्चों को पढ़ाया। आज हुस्ना ने सर फखर से बुलंद किया। ये हमारी बेटी ने मर्दान बोर्ड जो है ना वो जो टॉप किया, बहुत खुश है, इतना खुश है कि आपको खुशी का इंतहा नहीं है। और ये हमारा खुशी नहीं है, ये हमारा पूरे ज़िले का खुशी है और हमारे गांव इलाका खोड़ा निज़ामपुर का ही इसकी खुशी है।
اساتذہ کا کہنا ہے کہ حسنہ بی بی ایک ذہین اور محنتی طلبہ ہے. یہ اپنے عادات و اطوار میں بالکل صاف ستھری ٹیلنٹڈ بچی تھی، ویل مینرڈ تھی. مختلف اعزازات اور شیلڈز اپنے اسکولنگ کے دوران انہوں نے وصول کیے ہیں، ریسیو کیے ہیں. اور جب انہوں نے آرٹس میں جانے کا فیصلہ کیا اپنے ٹیلنٹ اور لائق ہونے کے باوجود، تو اسی وقت میں نے اس کو بتایا تھا کہ اب ہماری مستقبل کی مردان بورڈ کی ٹاپر ہوگی. حسنہ بی بی کی کامیابی نے غریب اور متوسط طبقے کے لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محنت سے منزل تک پہنچنا مشکل ضرور ہے. قصور کے نواحی تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس کی کارروائی. چینی شہری سے رقم ہتھیانے والے 2 نوسربازوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا. ملزمان چینی شہری کا بیگ جس میں 3 لاکھ روپے اور دیگر کاغذات تھے چھین کر فرار ہو گئے. تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس نے CCTV کیمروں کی مدد سے ملزمان کو ٹریس کیا اور کوٹ رادھا کشن کے علاقے سے ملزمانوں کو گرفتار کر کے رقم برآمد کر لی. DPO قصور صہیب اشرف نے اچھی کارکردگی پر SHO علی اکبر اور ان کی ٹیم کو شاباش دی. پیٹرول مہنگا ہونے پر لاہور میں شہری سراپائے احتجاج. شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ مسترد کر دیا. مزید جانتے ہیں شہریوں کے ہمراہ موجود ہمارے رپورٹر محمد ثاقب سے. جی ثاقب، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، عوام پر ایک دفعہ پھر پیٹرول پمپ پرائس کی صورت میں جو بڑھا دیا گیا اس کی صورت میں مارا گیا ہے اور پیٹرول کو تقریباً 6 روپے کچھ پیسے بڑھا دیا گیا ہے. اور اس کے بنسبت اگر دیکھا جائے تو ڈیزل کو کچھ چند پیسے تقریباً 51 پیسے کم کر دیا گیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. جو ہمارے ساتھ ایک عام شہری موجود ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ. سر ڈیزل کو چند پیسے سستا کر دیا گیا اور پیٹرول جو ہے تقریباً 6 روپے کچھ پیسے مہنگا کر دیا کریں گے. ویسے بڑے شرم والی بات ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ آپ ڈیزل کو بھی اتنا نہ کرتے اور پیٹرول اتنا مہنگا کر دیا کہ عوام اتنی پریشان ہوئی ہے جس کا آگے کھانے کو پیسے نہیں ہیں. بجلی کے بل دیکھیں وہ اتنے زیادہ کر دیے ہوئے ہیں اور جو پیٹرول ہے وہ آپ پھر مہنگا. ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے اور ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. جو بیچارہ 20,000 یا 25,000 کمانے ہے وہ کیا کرے گا مجھے بتائیں. جس کے 4-5 بچے ہوں گے وہ تو آخر وہ خودکشیاں کرے گا نا. اور یہ اب وہ وقت آ گیا ہے. یہ ہمارے حکمران اللہ غرق کرے. ہم تو یہ بدعا دیں گے ان کو کہ خدایا آپ کو شرم کرو یار. آپ خود تو اتنی گاڑیوں میں پھر رہے ہو، خرچے گورنمنٹ کے کر رہے ہیں. آپ لوگ اپنا خرچہ کر کے دیکھو، مزدوری کر کے دیکھیں، پھر ان کو پتہ چلے کہ کیا نمک مرچوں کا کیا بھاؤ باہر، پھر ان کو پتہ چلے. اور وہ ان کو تو انڈوں کا نہیں پتا. وہ کہتے ہیں انڈے اتنے روپے کلو ہیں. جس کو انڈوں کا نہیں پتا کہ درجن کیا ہے وہ کلو کے حساب سے کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ جی. ہاں جی، عام شہریوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو پیٹرول کو بڑھا دیا گیا ہے اس سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو حکومت کو اس کے بارے میں کرنا چاہیے کہ پیٹرول کو بڑھانے سے پہلے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ پیٹرول کو نہ بڑھایا جائے، کیونکہ پیٹرول کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے ساری خرد و اشیاء. للیانی میں چائنیز باشندوں سے رقم اور ضروری کاغذات ہتھیانے والے 2 ملزمان گرفتار ہو گئے. چائنیز باشندوں نے رقم اور سامان لینے کے بعد چائنیز میں پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ للیانی میں چائنیز باشندوں سے رقم اور ضروری کاغذات ہتھیانے والے 2 ملزمانوں کو گرفتار کر لیا گیا. چائنیز باشندوں نے رقم اور سامان لینے کے بعد چائنیز میں پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ للیانی میں چائنیز باشندوں سے رقم اور ضروری کاغذات ہتھیانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. چائنیز باشندوں نے رقم اور سامان ہتھیانے کے بعد چائنیز میں پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے لگائے. SP سٹی سرفراز ورک نے امام بارگاہ صدا حسین میں ہونے والے مجالس و جلوس کے ہائی سیکیورٹی انتظامات کو چیک کیا. اس موقع پر DSP شاہدرہ میاں قدیر اور SHO شاہدرہ نے پروینشن کے سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دی. دوران وزٹ منتظمین امام بارگاہ صدائے حسین سے ملاقات کی. تمام داخلی اور خارجی راستوں کا جائزہ لیا. SP سٹی نے روٹ اور اطراف میں لگی سیکیورٹی کو چیک اور الرٹ چیک کیا. بریف کیا. منتظمین کو سیکیورٹی معاملات میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایت دی. ترجمان پولیس کے مطابق دوران پروسیسن حکومتی احکامات اور ضابطۂ اخلاق کی پابندی کو یقینی بنائیں. SP سٹی تمام عہدیداروں کو سخت چیکنگ کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی جائے. ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سیکٹری بلدیات کے دورے گورا قبرستان اور گرد نواح کے سائٹ کا وزٹ کیا. سروس روڈ پر لاروا برآمد کر کے طرف کر لیا گیا.
सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशिर हुसैन ने तमाम डायरेक्टर्स मुतलका डिवीजन्स में डेंगू के लिए जामिया आगाही मुहिम चलाई। मुतलका अजला इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ तेज़ करें, कातिल मच्छर के खात्मे के लिए मुतलका महकमों के साथ राब्ते में रहें और हेड ऑफिस में रिपोर्ट करें। डेंगू लार्वे के खात्मे के लिए लोकल गवर्नमेंट्स अपना भरपूर किरदार अदा करें। अवामुन्नास में भी ख़तरनाक मच्छर के कंट्रोल के लिए हुकूमत पंजाब का साथ दें। सैयद मुबशिर हुसैन ने कहा कि इंसदाद डेंगू मुहिम में सुस्ती हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरीज के अहदे के 7 अफसरान तब्दील कर दिए। तमाम अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट करें कि हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरीज के अहदे के 7 अफसरान तब्दील कर दिए। तमाम अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया। आपको इंतहाई अहम खबर से अपडेट करें कि हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 18 के डिप्टी सेक्रेटरीज के अहदे के 7 अफसरान तब्दील कर दिए। तमाम अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनातियों पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको हम बता रहे हैं कि हुकूमत पंजाब ने 18 ग्रेड के डिप्टी सेक्रेटरीज के अहदे के 7 अफसरान को तब्दील कर दिया। तमाम अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनातियों पर रिपोर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर अली इमरान से। जी अली इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी, सिविल सेक्रेटरीट की ब्यूरोक्रेसी में खाड़ बछाड़ का दूसरा राउंड है। गुज़िश्ता रोज 4 डिप्टी कमिश्नर, सब असिस्टेंट कमिश्नर के तबादले किए गए थे। आज जो है वो 7 अफसरान जो है 7 डिप्टी सेक्रेटरीज के तबादले किए गए हैं। मैं आपको बताता चलूँ जिनमें 2 17 ग्रेड के ऑफिसर्स को प्रमोशन देके डिप्टी सेक्रेटरी बनाए गए, जिनमें अफजल अंजम और एहसान उल हक शामिल हैं। इनकी खिदमात जो है, एक ही अफजल अंजम की लोकल गवर्नमेंट और दूसरी की तकर्री जो है वो खजाना में की गई है। इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी 3 डिप्टी सेक्रेटरी चेंज किए गए हैं। महकमा ज़राअत से अब्बास शाह को लाया गया है, बिलाल सलीम और राना उमर है। हेल्थ में 1 डिप्टी सेक्रेटरी को तब्दील किया गया है, जो अली अकबर है। सीएम सेक्रेटरीट में भी जो है 1 तब्दीली की गई है, अली अकबर जावेद को लगाया गया है। अगर मैं आपको इसकी पूरी डिटेल से आगाह करूं तो ऐसा है, अली अकबर डिप्टी सेक्रेटरी जिला ऑफिस से ट्रांसफर करके डिप्टी सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कर दिया गया है। शायान अली जावा ये PAS ऑफिसर है ADC और जंग से, इनको जिला ऑफिस में डिप्टी सेक्रेटरी तैनात कर दिया गया है। राना मोहम्मद उमर डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को डिप्टी सेक्रेटरी फराज में ट्रांसफर कर दिया गया है। एहसान उल हक सेक्शन अफसर को ग्रेड 18 में तरक्की देकर डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट लगा दिया गया है। अब्बास शाह डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत तब्दील करके डिप्टी सेक्रेटरी खजाना है। बिलाल सलीम डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट। बताइएगा कि इन तबादलों की क्या वजूहात हैं? जी, सियासी तौर पर कहा जा रहा है कि जो सिलसिले कमिश्नर के तबादले थे वो सियासी तौर पर किए गए, लेकिन ये तबादले जो है वो खालिस्तान, इनमें ज्यादातर सीटें वैकेंट पोस्ट थी जिन पर तकर्री की गई है और ये एक रूटीन का अमल है। जी अली इमरान, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, दुनिया भर के कश्मीरियों ने 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाया। इस हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात और मुजाहिरे किए गए। मुजाहिरीन ने हिंदुस्तान की मकबूजा जम्मू व कश्मीर पर गैर कानूनी और नाजायज़ कब्जे को यौम सियाह करार दे दिया। बरतानिया में मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर मकबूजा जम्मू व कश्मीर की आवाम के खिलाफ हिंदुस्तान की दहशतगर्दी और गैर इंसानी खिलाफ वर्जियों पर के अल्फाज दर्ज थे। इस हवाले से इंडियन हाई कमीशन के बाहर भी मुजाहिरा किया गया। बर्मिंघम और ब्रेडफोर्ड में भी मुजाहिरे किए गए। इसके अलावा सेंट्रल में एक डिजिटल वेन कैंपेन भी चलाई गई जिस पर कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को उजागर किया गया और हिंदुस्तान के मज़ालिम को नुमाया तौर पर दिखाया गया।
सब्जी मंडी बादामी बाग के बाहर तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। आपको अपडेट करें कि सब्जी मंडी बादामी बाग के बाहर तजावुजात की भरमार है, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि सब्जी मंडी बादामी बाग के बाहर तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। हम आपको बता रहे हैं कि सब्जी मंडी बादामी बाग के बाहर तजावुजात की भरमार हो गई है, शहरियों का वहां पर पैदल चलना भी महाल हो गया है। आपको अपडेट करें कि सब्जी मंडी बादामी बाग के बाहर तजावुजात की भरमार हो चुकी है, शहरियों का वहां पर पैदल चलना भी महाल हो चुका है। आपको अपडेट करें कि सब्जी मंडी बादामी बाग के बाहर तजावुजात की भरमार है, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो चुका है। आपको बताएं कि सब्जी मंडी बादामी बाग के बाहर तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा गवर्नमेंट ने इन तजावुजात के खिलाफ अब तक क्या एक्शन लिया है? जी बिल्कुल, रावी टाउन तजावुजात का घर बन चुका है। सब्जी मंडी के बाहर कायम तजावुजात से शहरियों का पैदल चलना भी महाल हो गया है। DMO और रावी टाउन फारस भी अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नजर आती हैं। वीडियो में वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह तजावुजात सड़क के दरमियान तक आ चुकी हैं, लेकिन रावी टाउन का अमला इस तजावुजात मौके के खिलाफ एक्शन लेने से गुरेजा नजर आता है। मुबैना तौर पर डेली, हफ्ता, माहाना नजराना भी रावी टाउन के अमले की जानिब से इन रेडियो और पुख्ता तजावुजात माफिया से वसूल किया जाता है। जी सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी की तकरीब दुबई के मकामी होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब में सियासी व समाजी शख्सियात समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दुबई के साबिक सदर इरफान अफसर अवान और दीगर रहनुमाओं ने तकरीब से खिताब करते हुए पूरे पाकिस्तान और दियारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी और अहद किया कि हम सब मिलकर बेहतर और रोशन पाकिस्तान के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ UAE और कम्युनिटी बेहतरीन खिदमात पर सीनियर रहनुमा खलील आवान को इरफान अफसर आवान ने आज़ादी शील्ड पेश की और उनकी बेहतरीन खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। प्रोग्राम के अख्ताम पर पाकिस्तान के परचम के रंगों से सजाया गया एक शानदार केक भी काटा गया और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए दुआओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। खैरपुर नातहन शाह के इलाके शाही बाजार में शहरी का इंतहाई इकदाम, काशिफ नामी 28 साल शख्स ने फायरिंग करके खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलते ही पुलिस टीम मौका पर पहुंच गई। अफसोसनाक वाक़या पर अहले इलाका गम से निढाल, इलाके की फ़ज़ा भी सोगवार हो गई। अहमदपुर लम्हा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैकड़ों बोतल शराब बरामद, मंशियात फरोश गिरफ्तार। थाना अहमदपुर लम्हा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 450 बोतल कुपी शराब की बरामद कर ली गई है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक पुलिस ने मुखबर की इत्तला पर ताज चौक के मकाम पर कामयाब कार्रवाई की। पुलिस ने मंशियात फरोश मोहसिन कमाल के फरार की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से कुपी शराब के 9 पूरे कब्जे भी बरामद कर लिए। सेवन शरीफ के नवाही इलाका में स्कूल के अदम कयाम का मामला, अहले इलाका का बच्चियों समेत एहतजाजी मुजाहिरा। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ के करीब मंशर झील के किनारे 0 पॉइंट पर आबाद माहगीरों के बच्चों के लिए कोई भी स्कूल नहीं है, जिसकी वजह से सैकड़ों बच्चों तालीम जैसे जेवर से महरूम है। बच्चों के वालिदैन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उस मौके पर मुजाहिरीन ने कहा है कि माहगीरों को हर सहूलत से महरूम रखा गया है। हमारे पास कोई भी स्कूल नहीं, सैकड़ों बच्चे स्कूल जाने की उम्र में घर ही बैठते हैं। मुंतखब नुमाइंदों को काफ़ी मरतबा दरख्वास्तें दी है, लेकिन हमारी अभी तक कोई भी दाद रसाई नहीं की गई है। मंशर जेल के मंशीरों के बहाली के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए रखते जाते हैं, लेकिन सारे पैसे करप्शन की नज़र हो जाते हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर तालीम सिंध से सरदार शाह, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मंशर झील के 0 पॉइंट पर स्कूल दीगर हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाया जाए। कैमरामैन अली रज़ा मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोई न्यूज़।
आरिफ वाला के इलाका मोहल्ला मुश्ताक नगर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। अहल इलाका म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला मोहल्ला मुश्ताक नगर की गली नंबर 3 और 4 के रिहायशी नकासी आप के नाकिस इंतजामात के खिलाफ सरापा एहतजाज। गटर लाइन बंद पड़ी है। नकासी आब ना होने की वजह से बारिशों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है, जिससे लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। गरीब लोगों के घरों की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। ऑनलाइन दरखास्तों पर भी अमल दरामद ना हो सका। मजीद जानते हैं अहलियान इलाका से। मोहल्ला मुश्ताक नगर के रहशी हैं जी। सारिया बीबियां भैन माइया जिन्हें भी बंदे इत्थे खलोते हैं, असी इत्थों ने मकामी है। कई दफा असी बल्दियां च भी गए है, माइया भी साडियां गई हैं, असी भी एक वफद की सूरत विच गए हैं। ऑनलाइन भी असी भेजे है जी, साडी कोई सुनवाई नहीं होती किसी बल्दिया दे विच। जदों असी जाने सानू वो कह दिंदे कि तुसीं चलो, असी बंदे हुणे भेज दिंदे हैं, दोबारा बंदे नहीं आते। उस तो बाद असी MP दे कोल भी गए जिहड़ा साडा मौजूदा है जी, उत्थे भी असी यही जाके दरखास्त पेश की भी असी मजबूर है, साडे गटर बंद है, बारिशां आंदियां, असी बड़े औखे होने है। मेहरबानी करो साडी सीवरेज लाइन सही करवाओ। रत्तो डेरों में सिंध हेल्थ केयर कमीशन इंतजामिया खामोश तमाशाई। हेल्थ क्लिनिक्स में सफाई करने के नाकिस इंतजामात के बायस बीमारियां फैलने लगीं। मजीद जानते हैं असमतुल्लाह भट्टी की इस रिपोर्ट में। साल बदले मगर रत्तो डेरों के हाल ना बदले। गुज़िश्ता 2 साल कबल रत्तो डेरों में होने वाले HIV आउटब्रेक में इस वक्त तक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2500 अफराद इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं, जिसमें मर्द, ख़वातीन और कसीर तादाद बच्चों की शामिल है। और इस कातिल वायरस ने आज तक 70 के करीब मासूम बच्चों की जानें भी ले ली हैं। गुज़िश्ता 2 साल कबल सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, महकमा सिंध, WHO और दीगर आलमी इदारों ने एड्स को रोकने और इलाज देने में भरपूर दिलचस्पी दिखाई, मगर वो एक दिखावा ही रहेगी। रत्तो डेरों के MBBS डॉक्टर्स डॉक्टर नरेश कुमार, डॉक्टर अख्तियार अली मंगी, डॉक्टर अफजल ओढो, अजीज़ सुमरो, डॉक्टर खालदा मंगी। अपर सवात में दावत इस्लामी के शोबा IGRF के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम। दावत इस्लामी के सूबाई निगरान कारी इशफाक, DC अदनान खान और चीफ कंजरवेटिव कफ़ायतुल्लाह बलोच ने पौधे लगाए। मजीद जानते हैं मुअत्तर अली की इस रिपोर्ट में। दावत इस्लामी के शोबा FGRF के तहत प्लांटेशन मुहिम का आगाज़ किया गया। इस सिलसिला में दावत इस्लामी के सूबाई निगरान कारी इशफाक, DC अदनान खान और चीफ कंजरवेटर कफ़ायतुल्लाह बलोच ने पौधे लगाकर दावत इस्लामी की शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। दावत इस्लामी के वर्कर्स ने दीगर फॉरेस्ट एहलकारों और पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर नहायत जोश व खरोश से पौधे लगाए। इस मौका पर दावत इस्लामी के PK के निगरान कारी इशफाक ने मेहमानों को दावत इस्लामी की दीनी और फलाही खिदमात के हवाले से आगाह 20 लाख पौधे लगाए और इस बार जो हमारा टारगेट है इंशाल्लाह वो हम 12 लाख पौधे इंशाल्लाह ये हमारे टारगेट है। इंशाल्लाह पाकिस्तान भर में अल्लाह की रहमत से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है जो हमारे आज पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों पर प्लांटेशन की तरतीब कर रहे हैं। दावत इस्लामी की शजरकारी मुहिम 2 सितंबर तक जारी रहेगी और 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता साल 20 लाख पौधे लगाए गए थे। दावत इस्लामी की शजरकारी मुहिम को खराज मैदान में मार्शल आर्ट्स के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की फाइटर्स ने हिस्सा लिया। मजीद जानते हैं फैसल ज़ादा की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा सरकारी तौर पर स्पोर्ट्स ऑफिस के ज़ेर एहतमाम मर्दान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मिक्स मार्शल आर्ट फाइट के मुकाबलों का एहतमाम किया गया, जिसमें 8 मेचेवर और 2 प्रोफेशनल फाइटर्स समेत 20 फाइटर्स ने हिस्सा लिया। फाइट्स मुकाबलों में नेशनल और इंटरनेशनल फाइटर्स शरीक थे। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर स्पोर्ट्स और सियाहत मोहम्मद आतिफ खान थे। इस मौके पर फाइटर्स का कहना था कि इस तरह के मुकाबलों के इनेकाद से फाइटर्स की हौसला अफजाई होगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने MMA पहली मरतबा सरकारी सतह पे करवाई।
ललियानी में चाइनीज़ बाशिंदों से रकम और ज़रूरी कागजात हथियाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार। चाइनीज़ बाशिंदों ने रकम और सामान लेने के बाद चाइनीज़ में पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको अपडेट करें कि ललियानी में चाइनीज़ बाशिंदों से रकम और ज़रूरी कागजात हथियाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। चाइनीज़ बाशिंदों ने रकम और सामान लेने के बाद चाइनीज़ में पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको अपडेट करें कि ललियानी में चाइनीज़ बाशिंदों से रकम और ज़रूरी कागजात हथियाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। चाइनीज़ ने बाशिंदों में रकम और सामान लेने के बाद चाइनीज़ में पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। देखें, ये आईजी पंजाब फैसल शाहकार ने एक नोटिस लिया था जो कि कसूर के इलाका ललियानी में चाइनीज़ बाशिंदे से जो है वो एक नौसरबाजी की गई थी, जो कि पाकिस्तानी 1.5 लाख रुपया था, उसके डॉक्यूमेंट्स थे और मोबाइल फोन था जो कि चीन के चला गया था। इसमें जो है वो पाकिस्तान की भी बड़ी बदनामी हुई थी, क्योंकि चाइनीज़ बाशिंदों ने अपने अहले खाना को बजरिया टेलीफोन करके तमाम तफसीलात बताई थी कि हमारे साथ जो है वो कसूर के अंदर वारदात हो गई है। उसका जो है वो खासा तौर का जो है वो आईजी पंजाब ने एक्शन लिया था और डीपीओ कसूर को हदायत की थी कि हर सूरत मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए, और मुलजमान को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ्तार करके पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया गया और उनकी तमाम जो जरूरी कागजात थे और उनकी नकदी थी, मोबाइल फोन थे, वो भी उनको वापस दिलवाए गए। लेकिन चाइनीज बाशिंदों ने भी जो है वो एक पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा किया। अपनी ही जुबान चाइनीज में जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। इसी पर जो है वो डीपीओ कसूर ने उनको अपने सीने से भी लगाया और डाकुओं को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए उनको चालान करके जो है वो जेल भी भिजवाया है। जी वसीम साबिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।